I am going to discuss the question answers of chapter number 2 of history. So let's start. I will be giving you the question answer in 3 sets, almost 3 sets. The first set was related to practice zone number 1 and in which question number 1 and 2 was extra question. So first 2 questions were this. These were very clear. कि ये कौन थे? They were Rajput clan, सूर्यवंशीज अपने आप को कहते थे. They had rising sun as the symbol. तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजपूत क्या था? दैट वॉज देयर ऑन पेज नंबर 24 ऑफ योर बुक, जिसमें प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज एंड आफ्टर दैट विलेजेस के बारे में बताया गया है और उनको कौन हेड करता है. दिस इज व्हाट इट इज रिटन अबाउट. द सेम फ्लो चार्ट आपको अपने आंसर में बनाना था. देन मूविंग लिटिल फर्दर, देन इज हु वर राजपूत. उनकी पॉपुलर स्टोरी क्या थी, उनके डिसेंडेंट की, वो कहाँ से आए थे? दैट वॉज द मेन क्वेश्चन. सो द आंसर सेज दे वर सन ऑफ द किंग्स. Term that means small kingdom से आए थे. They belong to Kshatriya clan of India. Some even claim that they were successor of Pandavas. They said they originated from 3 powerful clans, warriors, Suryavanshis, Chandravanshis and Agnivanshis. Then the question number 2, extra question जो मैंने आपको कराया, tripartite struggle. This is very very important question and Kanuj was the center of struggle. Give 3 reasons. Tripartite struggle means जब 3 powers में struggle होती है, that's the tripartite struggle. तो इन 3 powers में struggle थी to control the region of the Kanuj. And what was the actual reason कि क्यों हो रहा था ऐसा? The factors, 3 factors I have given, was located in fertile land. पहला था वो बहुत ही fertile land पे था, गंगा यमुना रिवर के बीच में. And then does the control lead to the richly fertile region? Obviously the kings wanted to be, or kingdoms wanted to be rich. Then is prosperous trade was carried through these rivers, तो access to trade मिल जाता. Third is it was the main city of Harshvardhana, and अगर हर्षवर्धना की सिटी को कोई कॉन्कर कर ले, कोई जीत ले, तो it was said as the matter of prestige. So these were the 3 reasons. Now we will be moving towards our next set of questions. That's set of question as 2. Then this is what I have sent to you as practice zone 2 and question number 3 to 9 as extra questions. So it was related to the concept, वो पहले concept से भी related थे, new dynasties in northern, central and western India. And उसके बाद next concept जो हमने कर रहा था, dynasties of south, the Chalukyas, the Pandyas, the Pallavas, उनके टेम्पल आर्किटेक्चर. उसके बाद चोलास के बारे में पढ़ा, चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एग्रीकल्चर, उनका इरिगेशन. दिस इज व्हाट वी हैव रिसेंटली स्टडीड इन वन ऑफ द वीडियोस. नाउ लेट्स सी चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट क्यों मानी जाती है. दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. द आंसर इज वेरी क्लियर बिकॉज इट वॉज क्लियरली स्ट्रक्चर्ड. देन इज एक्सप्लेन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ चोलास. चोलास का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था? एज वी हैव स्टडीड वेरी वेल इन द चैप्टर दैट उनको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में स्पेशल इंटरेस्ट था. दे यूज टू प्रमोट इट. वो उसको पैसे भी देते थे सो दैट इट कैन बी प्रमोटेड. वैक्स मॉडल क्रिएट करा जाता था स्कल्पचर का, उसके बाद उसको मोल्ड में डालते थे, फिर वो मोल्ड ब्रॉन्ज या स्टोन के ऊपर चढ़ाया जाता सो दैट यूनिक स्कल्पचर कैन बी मेड. देन इस चोलास ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए. बृहदेश्वरा टेम्पल है जिसमें 61 मीटर हाई टावर था, वो आर्किटेक्चर मार्वल था. अदर टेम्पल्स उन्होंने बनाए, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स थे. शिव जी की इनकरेशंस के बारे में वहाँ पे दिया गया. दैट मीन्स उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर वॉज वेरी रिच. देन इज वी हैव सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 एज एक्स्ट्रा. 2 हमने ऑलरेडी लास्ट सेट में करे थे. सो दे आर सेइंग some of the rulers of early, now don't be confused, this is about the early medieval period. Early medieval period में the Solankis, the Chindeals, the Tomars and the Chauhans ने rule किया था and their time period is also mentioned over here. Then is write a short note on the military formation and the financial resources of Rajput. Administration formation we have already studied. This was the administration one, if you could see. दिस इज कम्प्लीटली द एडमिनिस्ट्रेशन वन. ऐसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो होता था. लेकिन व्हाट अबाउट द मिलिट्री? मिलिट्री में क्या था? दैट दे यूज टू गेट द सोल्जर्स एज राजपूत सोल्जर्स इन द आर्मी. देयर पर्सोनल आर्मी वॉज अडॉप्टेड मेनी टाइटल्स लाइक महाराजा, धीराजा, त्रिभुवाना एंड सो ऑन. द सोल्जर्स इन द आर्मी वो वेरी ऑनेस्ट टू द किंग. वो बहुत ऑनेस्ट थे एंड किंग लैंड देते थे समानतास को, जो उनको रिटर्न में वापस से मिलिट्री
देते थे, मिलिट्री हेल्प। फ्यूडल सिस्टम मैंने बताया था, दैट इज द सेम। तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? लैंड रेवेन्यू था, 1/2 से लेके 1/6 तक वो लेते थे एज पर द यील्ड, जितना भी एक लैंड कमाता था। अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू, टैक्सेस वर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस पीपल लाइक द कैटल हर्डर, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। सो ये उनका सोर्स ऑफ इनकम था। गिफ्ट्स फ्रॉम द ट्रैवलर वॉज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। जो ट्रैवल करके जाते थे, निकल के जाते, उनकी तरफ से गिफ्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स था। मूविंग फर्दर, गिव एन अकाउंट ऑफ द चालुक्यन, पांड्यन एंड पल्वन किंग्स। हमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताना है, दैट्स व्हाट वी हैव रेड इन द चैप्टर। तो चालुक्यास के बारे में ऑलरेडी नो कि वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के ऊपर दे हैड देयर किंगडम। 6th सेंचुरी में वो दे केम इनटू पावर एंड दिस वाज द पर्सन, पुलकेशिन I वाज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। उनको अल्टीमेटली 12th सेंचुरी में उनका रूल एंड हो जाता है। किसने कर दिया? राष्ट्रकूटास एंड चोलास ने उनका रूल एंड कर दिया। फिर द पांड्यास वर द रूलर्स इन साउथ इंडिया, दे वर वन ऑफ द 3 मुंडेवर्स, दैट मीन्स 3 राजे जो एक्चुअली साउथ को रूल करते थे, उनमें से एक ये थे, हु कंट्रोल्ड द ट्रेड रूट्स ऑफ द सदर्न इंडिया। द रिच तमिल लिटरेचर, अभी इनका रिलेशन कहाँ पे है? संगम लिटरेचर वॉज कंपोज्ड इन मदुराई, देयर कैपिटल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस मीनाक्षी टेम्पल वॉज डन इन देयर किंगडम। Then what about Palwas? Established in 4th century CE, the Palwas were one of the most powerful dynasties of South India. They remained involved in constant fights with neighboring. इनका क्या प्रॉब्लम था? They were always into fight with these two. So उनका प्रॉब्लम क्या था? दे हैड अ प्रॉब्लम विद दिस कृष्णा रिवर एंड इस रीजन के लिए वो फाइट करते थे। दे गिव फुल सपोर्ट टू लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। द रॉक कट टेम्पल्स उनका एक एग्जाम्पल है, पैटर्नेज, दैट मीन्स वो उसको स्पॉन्सर करते थे, उनको पैसे देते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द चोला पीरियड? नाउ चोला पीरियड को हमने बहुत ही प्रॉपरली पढ़ा है इन वेरी स्ट्रेच्ड मैनर। सो वी आर गोइंग टू लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ दीज। इरिगेशन कैसा था? एज यू नो, आई टोल्ड यू, उन्होंने डैम्स बनाई, इम्बैकमेंट्स बनाई फ्लड स्टॉप करने के लिए, कैनाल्स बनाई प्रॉपरली इरिगेशन करने के लिए, डैम्स स्टोर करते थे। तो उनको चोलाज वर वेरी क्लियर कि उनको अगर क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो उनको इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करनी। सो दे वर वेरी पॉपुलर फॉर दिस। हु वर द medieval चोलाज एंड हाउ डिड दे केम टू पावर? दिस स्टोरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। डिड आई टेल यू दिस स्टोरी? यस। सो विजयाला वाली स्टोरी है, जिसने थंगावुर बनाया, फाउंडेशन लेड करा, उसके बाद उसके आगे सक्सेसर्स आए, राजा चोला एंड राजेंद्र चोला। राजा चोला ने पहले बहुत सारे पार्ट्स कॉन्कर करे साउथ के एंड श्रीलंका के, देन राजेंद्र चोला ने बंगाल और म्यांमार तक अपनी आर्मी भेजी और उनका देवर द ग्रेट बिल्डर्स ऑफ टेम्पल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके वो एक्चुअली थे कौन? देवर द फ्यूडल लॉर्ड सर्विंग द पल्वा किंग। वो पल्वा किंग के फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो उनको आर्मी प्रोवाइड करते थे। लेकिन विजयाला ने उनको, विजयाला जो था वो ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, तो उसने आगे अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। देन इज 8th क्वेश्चन, हाउ डिड द विलेज असेंबली वर्क? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विलेज असेंबली कैसे वर्क करती थी। सो हेयर इट सेज द विलेज असेंबली इज अ वेरी स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। वो सबसे स्पेशल था, डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी उसमें, असेंबलीज एंड सभा क्रिएट करी जाती थी जो डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करती थी, लाइक इरीगेशन, टेम्पल्स एंड गार्डन्स एंड इंस्क्रिप्शंस से पता चलता था कि कैसे रन करनी है एडमिनिस्ट्रेशन। चोला टेम्पल्स में लिखी रहती थी, परमानेंट रिकॉर्ड्स बन गए थे वहाँ पे, एंड आई मीन थोड़ा डेमोक्रेटिक और इलेक्शन वाला भी प्रोसेस था, एंड इट वॉज अ वेरी स्पेशल थिंग बिकॉज पीपल यूज टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग in their administration. So that's what it is about. Then moving to the next question. Now this is again a flowchart of graphic organization explain the Chola administration. आपको जब भी कभी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाओ तो आप एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल थिंग। चोला एम्पायर में अगेन उनके नेम्स थे, मंडलम्स प्रोविंसेस को बोलते थे, वांडलस, देन दैट्स डिस्ट्रिक्ट, नाडूज विलेज थे, उनमें 2 असेंबलीज रहती थी, महासभा और ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स की। आफ्टर दैट दे हैड सिटीज एंड टाउन्स जिनको मैनेज करता था गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट, मतलब ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। सो नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एज आर सेट 3, जिसमें लास्ट पार्ट के बारे में क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन होगी। नाउ हियर इज महमूद ऑफ गजनी का कोई मोटिव था इंडिया को अटैक करने के लिए, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन वी आर आस्किंग। ऑब्वियसली उसका मोटिव था टू लूट द वेल्थ ऑफ द किंगडम ऑफ इंडिया, लोगों को वो अपने स्लेव्स बना के ले गया, एंड ही फाइनली ही रिटर्न्ड बैक टू गजनी। उसका कोई कॉन्कर करने का कोई मोटिव नहीं था।
So next is how inscription are valuable source. Inscription tell us lot of to us about the administration of the king. उसकी सेल डीड क्या थी, लैंड ग्रांट्स क्या थी. I mean if something is written somewhere, obviously it becomes a record for the future. Then is extra question, write a short note on the invasion of the Turks. तुर्क्स कौन कौन थे जिन्होंने इंडिया को अवेट करा? महमूद ऑफ गजनी ने अवेट करा, देन मोहम्मद गौरी ने अवेट करा. इसने वेल्थ लूटी और इसने कॉन्कर करा पंजाब एंड सिंध. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन इन शॉर्ट नोट. देन इज अल बुर्नी कौन था? ही वॉज अ राइटर ऑफ द क्लोनिसर्स ऑफ महमूद ऑफ गजनी. उसने बहुत तारीफ करी थी इंडिया की कि इंडिया के पास इनॉर्मस वेल्थ है, वहाँ प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ का अरोमा बहुत अच्छा है ब्यूटी के बारे में, क्योंकि वो खुद ही इतना ज़्यादा इम्प्रेस था. एज ही माइट हैव यूज द ओल्ड डॉक्यूमेंट्रीज और समवेयर ही हैज़ रेड इट, so he converted it in his book. Describe in short the exploits of मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी ने इंडिया को कैसे एक्सप्लॉइट करा, क्या करा इंडिया के साथ. तो what he did was, who was he? First I have described that, and after that उसने क्या किया, इंडिया को गुजरात कॉन्कर करने की कोशिश करी लेकिन अनसक्सेसफुल रहा. फाइनली ही कॉन्कर्ड पंजाब एंड सिंध. तो था कौन? ही वॉज लिविंग नियर एरिया इन द गौर, गजनी के नियर था. पहले उसने उसी को कॉन्कर करा, गजनी को उस एरिया को कॉन्कर करा, फिर उसके बाद उसने अपना जो टर्न है वो इंडिया की तरफ मोड़ लिया. दैट्स हाउ ही captured India. लेकिन he was stopped by the rulers of Delhi Sultanate. So here we finish our chapter.